রাগ হয় না, অনেক কথা কয়, অনেক দুষ্টামি করছে। জামাল ভাই বউ কই আসতে আসতে ওই হিতিলে ছোট থাকতে দোনো কত তোর হইছে তো জামাল ভাইয়ের বউ হেতন হায় আমার যেত নিফের হুই ক আরে আমরা মাছ ধরতাম যাইতে কি কে কি কি হুই না কইছিল এ হুইরি বিতে ক মাছ ধরতাম যাই ওগার ওগা হ্যাক মেলাই ডুবে আন্দোল বানা লাইতাম ক নাড়া তুলতে যাইলে গোবর টোয়াইতাম যাইলে এই সময় তো মাইয়ারা ইগিনে করতো যে শতানি করছি আমরা মন তো হবো তো বই কন গের বোনের লগে ইগিন করন যাবে এখন আজকাল গোবর টোয়াই নারা কাটেন সানা কত নাড়া তুলতে কত গোবর হইতে এতে লেখা পর্যন্ত শেষ যাই স্কুলে যাইতে করলে গোবর আমাদের হাতরে দৌড় দিতে এটি যে মাইরি দিয়ে খাইছে সানা কাম করছে তো এই দিয়ে বেশি জানরা বেশি অহন লাভলি করে লাভলি আনলে কাম করছে আর রহম সানা করে না আনরা বেলে তো দুই রাত খাইনি আমিও করি তুই করছিস টুকটাক কিছু হালন করে ঢং করতে কি কাম করতে কেন সারা গিডি বিয়ালি গুছাইতেন নাই না হিতি কাম করছে আঙ্গো ভাই নানা গো ভাই কাম করে কম করছি ইয়ানে যে ঢং স্কুলে যাইতো কত ফ্যাশন করে যাইতো আর দাঁড়িয়ে তো করছি দানহু হইছি গাছি আবার মান লগে ইয়ে করছি ঘরটা ঝাড়ু দিতাম উড়ান বাড়ি পরিষ্কার রাখতাম আর আর মনে আছে আমি যখন ক্লাস 4 এ আছিলেন আই গেছিলাম আমার স্কুলে আর স্কুলে গেছে না ঢং করতে গেছে আমি তো ছোট ছিলাম একবার ছোট একটু একটু মনে আছে কি ঢং করে স্কুলে যায় আজিন না ছিলাম আজি না আগলের মধ্যে ওই আলে ওরে বাপরে লিপস্টিক এর দুল লাগাইতে আলে আলিয়া অনেক আজি যেত যাইতো না আমগো বাড়িতে সেই সময় হাজি কি সুন্দর স্টাইল করে যেত আবার পারবিনার নাসিনে হাসতো না আলিয়া হাজি নাজি যেত হাসতো বেশি এবার দিয়ে আলিয়া হাসতো আর অঙ্গেও তার মানে গেছে ওই সাহায্য পা হাসতো না খালি জন্না হাসতো মানে মুশিয়ে পা হাসতো না না রেনা পাও হাসতো না খালি ওই ইন্দি জন্নাই গিয়ে হাসতো জন্না হাসতো আর মুখ ইয়ানে ডলতে ডলতে ইতি এক চামড়া এই সাইডের কয় করে গেলে তুই মানে 100 বার মুখে হানি দিতে দিতে আর ডলতে ডলতে লাল বানালে তুই আঙ্গো সেনালে হাসতো কাজলির বোন বড়দাদা লিলুন এটি যেমন সোবা তেমন হাজনি দি তেমন ব্যাগ কিনে দি স্ট্রং আছে বাবু নার কোনো ব্যাগ আছিল আরো বসিয়েছিল একটু শর্টফুটকে বুসি শর্টফুট গইলে বুসি ওই ইয়ার মতিন মোল্লার না মোলা যাইয়ে মোল্লা দিয়ে বুঝি মাঝেগা 60 জায়গা ধরো ধরো এক না রাখো মা এক না লাগাই দেখো হিটিয়ে ছিল আঙ্গলগের তোরা চিনবি করতো না দেখছি এনে দেখছে তারে তোরা চিনবি করতো বুঝি নাম জানি আমি এরা ভুলি যাই আস্তে আস্তে ওই শায়নাপার নতুন ইচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ শায়নাপার ডকের মতন এই নেরি আপা ও হানিফ মালানার তো বিয়ে দিছে দে মোরা আর ওকে হুজি হয় না কার নেরি আপা কোনো হয় নাই না বুয়ে গেছে না হয়ে গেছে জামাই ও হালো কো হালে না হালো খাইলে জামাইয়ে ক যদি মাইয়ে হালে তাইলে আয় দেয়া দিব কেন তো হোলা খাইলে হেতনে দেয়া দিব কেন 12 বছর আর হরে হোলা নয় তো ইয়েলে আর হালো কো হালে এ জায়গা সম্পদ ব্যাগ বাপ মুচ্ছে আর ইয়ের পরে নিয়ে এই কোনো এস্তমা টস করিয়ে ব্যাগ গাইন মাদ্রাসাতে 3খানা দিয়ে লইছে এ খাইলে গরম রাখছে ফুট নেই জি নেই কিনলে তো সব 3খানার দাম করে দিছে মাদ্রাসা মসজিদ এই দিন তো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে মরুনির বিনে জামাই মরুনির আর বিন আছে না জামাই ওই আঙ্গ ইয়ে উত্তর বেশ লিলের লীলা শাস্ত্র না যাতে ওই আজ
আজন নিয়ে যাই আজ যে যে ছোট ঘর মাইয়ে তো দুকে ওকে মারো নিকি হিতিরে চাই দিছে না স্বাস্থ্য বাইতেছে বিয়ে হইছে কাশ্মীর আগের উত্তর পাশে এই হিতির বোনের জামাই অ্যাক্সিডেন্ট গালে চাপা মাথায় উল্টো হয়েছে এটা আর কি ফিকাবে নাকি ইয়ে জানি এখন একটু ভালো আছে কেউ কইছে মরিজের অবস্থা লই গেছে আমি বলে একটু ভালো আছে শিলিবিলি দিয়ে আর লাগছে মানে গিনি গিন দিয়ে মানে বলে চামড়া চামড়া উঠে গেছে আঙ্গো জেসমিনের জামাই তো বিদেশে হওয়া যায় এই হাতের মুখে প্লাস্টার করেন প্লাস্টিক সাইবার জেসমিনের জামাই মুখে হাতের তো কে চিনতেও না হাতের আগে ছবি হারাই তো হে ছবি সে মুখ সাজারে দিচ্ছে বাবু কালকে রাইতে কি ইচ্ছে জানেননি সাজ্জা ফাঁকে জানলা দিয়ে কে জানি ঘটর লাগাই দিয়েছে ও দুদিন ধরে এর আগে দিন আপা বলে কে গেরে কর হের পরে জানলা গিন টানে মানে জানো সিমে থপ্পর করে হইছে না ঠান্ডা গুন্ডা হলা হ্যাঁ আবার ওই হুনে ওই যে ইতিরে জান্নাতির লেগে বলে কে জানি চাইছে এ হলাই গে বলে কারণ হলে হইতে দিন এই টাইমে আইয়ে 1:30 বাজে 1:30-2টার দিকে আইয়ে তো জামাই কাছে শুনছি আরে টেট দিছে হাতে জান্নাতি দিলে কেমনি সংসার করছে নাই চাইনি কে হলাই গে বলে ওই জান্নাতের বিয়ের আগে কইছিল এতটা দেয়নি দেই না আমি না হলাই মানে হলাই গে নি আইয়ে না আইছি হে জানি নি ইচ্ছা করে আন্টি কইতে রিয়েন না নানু তো আমি কিছু কইছি বলে কয় তারিখে বলে ঢাকা যাইব জামাই বিয়েতে হিতির নাম সেগো বাড়িতে হিতি সাজা যাবি হিতি জামাই তো নিতে চাই হিতি না বলে না করে একবারে নিয়ে যাইতো তো এটা বুঝবো উঠেছে কেন ও হাতের আহারে না তো হাতের আহারে না এরপরে আমি কই দিছি কই দিছি এরপরে আবার কান দেবে অন্তরে মানে কোনো খবর না মেয়ে তো কয় না আমি কি জানি কয়টা না কিছু জিজ্ঞেছি না দর এই বাতলে খাইব না খামাকা বাতি রয়েছে ডিম দিয়ে খেয়েছি তুই দেবে আর মাছেরই দিলাম না আমারও গাছ আমারও মাছে খায় বাপরে কত ভিউ হয়েছে মাইয়ের না বাপরে কত জনের লাইক দিছে তো দিনে গিলি তো দেয় সারা দিন দেখতে পানি খা ঘুমা मैं করবে আট ঘুমাইতে নইলে এনে ঘুমা পড়ে লই যে এনে ঘুমাই আবার লাইট লেছি লেতো না সমস্যা নাই শুয়ে যা ইতি আর উঠে না তো লাইটলে উঠে না রাতে উঠে না তুমি আমার খাওয়াবে আমরা খাবো জুকা আমাদের বানিয়ে বলছে না যাইব গা বা কম্বল কিনে তাকে খেয়ে গে গাদ দি ইয়ান দুই বেড দুই দেখি ইয়ে দে সারি গিন বেটার করে কি চাই আল্লাহ জানে এতে কিন কি ইয়ে বুঝে কি জানি কেন বুঝবার কিছু আছে শিবিতে ঘুমাই রয়েছে নি ঘুমাই থাকলে টিভির কোন এরে তুই ইগেন চাস কেন ইগেন কেউ সবাই চাইতে পারে না সবাই মিলে চাইবো যেটা হিটা চা
নাটক অজ্ঞ দে নইলে এইতেন অজ্ঞ দে আসন্য ভিডিও অজ্ঞ দে ও ফকির গেরাম নাটক গিয়ে দিচ্ছে ও এক ফকির আর এক ফকির রয়েছে তুই এক বাদাম মে চাস আর এক বাদাম মারবি রান্না কি কিনকে চিনি চাইতে বাতামে বাতামে দেখতে পারিনি তো কি দিছে তোকে নাঙ্গল কি হাতে বাতামে কিনে দিছে নাকে সিএডি মিএডি দে হাতে নাকে ওকে মোটা পয়সার কয় কি আর নাক লই গেছে গুলি করছে আর নাকের উপর এই পর্বটা অনেক সুন্দর ছিল সাজা ভোগ পাইতে চাইছিলাম হে এত ঘুরন পাইতে থাকতে আরো কয় বছর আগে সাইমা অনেক আগে ওরে বাপ রে ব্রিটিশ আমলের কথা হ্যাঁ আস্তে আস্তে মরি যাই সিডি আসিল তো হিন্দি ওই যে সবাই তো দেখলাম তুইও অজানা কেন মিজান রহমান আজারি আইছে দেশে না শুনছি তো ইয়ের এসছে আইয়ে বাংলা ভাই কত আসতে ভাই পারে। ইয়ের এবার আসতে পারে এবার আসবো কারণ ক্ষমতা তো আমাদের বিএমপি আইয়ে এরপরে পোস্টার মোস্টার লাগায় হুদা ধানে চুচ করে হ্যাঁ বেগুনি বিএমপিও আইতে ইচ্ছে না চাইয়েন যে ক্ষমতায় বইছে কয় বছর বইয়ে ঠিক আছে নি দেশে আগুন লাগে যাব যুদ্ধ লাগবে আবার একটা আমি লিখ বিএমপি ওকে দেখতে পারে না এর ভিতরে ভেজাল আরো লাগাই দিব জমতে এবারে জমতে তিন গ্রুপে লাগবে এবারে চার গ্রুপে কোনো আনে শুনছে নি ওয়াজ মাহফিলে যাই মানছে মারামারি করে আস্তে মাস যায় এবারে 30 জন মরছে হুজুররা লাগে এগুলো দুইটা আছে না এগুলোর ভিতরে ওই কামি এক দল আর এক দলে ইতেন এক দল দেন হুজুরে লাগাই দিব যুদ্ধ 30 জন মরছে এবারে আসতে না মিজানুর রহমানেরা বা ইয়ে তো কুমিলে না এবারে রাষ্ট্রমন্ত্রী রাষ্ট্রদূত আরে কি হোলা রাজি গুণ হইছে না এবারে বেগুন কুমিলে হোলা এগুনের ভাই অজ্ঞের ভাই লাগা খাওয়া না কেন আর বেগুনের ভাই কুমিলে
গুঞ্জারি দাঁড়ে এইতে গানি কি বলেন কি করে গরম লাগে গোসল করে তুই ঘুম যাবি কেন তো কিন্তু দিছে আমি তো মোবাইল দিয়ে আবার আবার তা জুড়ে দিল এখন যেতে দিল আট উঠতেছিস না এত কোমরে দিতে কোমর দিতে তোর কালকে ধরু বানি তোর লাড়ু বানানি তোর লাড়ু খাই আমার মাইয়ের সাথে তোরা জামাইরে থাবো দিঘা তা তো ছুটাইল মা কি বলেন এই শার্টের দাম 300 ইউরো
নিশু তুই দিলে নিয়ে না ভাত খাইতে না রে বা না না এই এইদের খাওয়াই দেন না আগে তো নৈতিক আইব না তো ওই তুই ডিম বাজা দিছি আন্টির খাওয়াই দেন না 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 এতে আন্টির খাওয়াই দেন তাইলে না আন্টিরা হাত দিয়ে খাওয়াই দিতে কই তোমরা তুমি যাইবা না ল তো ভাই এনে ঘুমাইব হেরু লো তো বলটা কম্বল না এই না আগে দে একানি যাবে না ইয়ে হইতে নিয়ে সব সাবি কিন্তু রে বা তুই ভাত খাইতে না জি তুই ভাত খাইতে না বাদ দাও না না খাই দেন না কি খাইতে না কি দেন না পেঁয়াজ মরিচ দিয়ে ডিম ভাজি খাইতে না রে বা তুই কি ডিম কে হামনা করে দাও এখানে দিলে মানে তুমি খাওয়া দিবে নিশি ডিম কে আপন করে দি দুটো কাস্তা না না না
যে আমাদের এলাকা ভাই আরে খাইতাম না হুদাই খেলে ইয়ে করতেছেন
इस फौजी ने एक फावड़ा लेकर अपने साथी के पैर के नीचे लगा दिया। फिर उसने फावड़े को जूते और लैंडमाइन के बीच जोड़ कर छोड़ा ताकि लैंडमाइन का बटन ऊपर ना उठ सके, नहीं तो ये दोनों भी ऊपर चले जाएंगे। इसी तरह उसने दूसरी ओर भी एक फावड़ा घुसा दिया। अब उसे किसी भारी सामान को वहां रखना होगा ताकि उसके साथी को लैंडमाइन से हटने के लिए थोड़ा समय मिल सके। माइक सब कुछ फावड़े के ऊपर रखने के बाद जाकर पेड़ के पीछे छुप गया। फिर साथी ने धीरे से पैर को बाहर निकाला और बैग के ऊपर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उस पर चढ़ते ही वो लड़खड़ाने लगा। मगर सौभाग्य से माइक ने जल्दी से आकर उसे संभाल लिया और इस तरह एक बड़ी दुर्घटना होते होते बची। हालांकि असली मुश्किल तो अभी। क्या आप जानते हो कि हम इंसान अपने बॉडी पार्ट्स दोबारा उगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक लिमिटेड टाइम तक ही। जैसे कि अगर न्यूली डेवलप हो रहे 8 हफ्ते के बच्चे का हाथ उड़ा दिया जाए तो वो बिल्कुल वैसे ही दोबारा से निकल सकता है बिना कोई निशान छोड़े। लेकिन 9 हफ्ते के बाद ये गलती मत करना। और तो और अगर छोटे बच्चे की फिंगर टिप कट जाए और बस थोड़ा सा ही नाखून बचे तो वो भी दोबारा से उग सकता है। हालांकि बड़े लोगों में भी बस थोड़े कम चांसेस हैं। लेकिन जवान होने के बाद लिवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसका अगर 70 से 90% हिस्सा भी काट कर निकाल दिया जाए तो वो कुछ ही महीनों में दोबारा से पूरा का पूरा उग सकता है। क्या आप सोचो टीचर के साथ डील हुआ हो कि भैया कोई भी अगर परफेक्ट सर्कल बना दिया उसके बाद जो बोलो सो, बट अगर वो सर्कल 95% से कम एक्यूरेट रहा तब तो भैया आज ही होगा सरप्राइज टेस्ट। एंड स्टूडेंट कतई मेहनत करके बनाने की कोशिश कर रहे हैं पर भाई परफेक्ट सर्कल तो बन ही नहीं रहा। और फिर चांस आया इस लास्ट बंदे का जिसके ऊपर पूरे क्लास को भरोसा है और उसने जो किया वो तो शॉकिंग था। तो सब हंसने लगे पर फिर ये बोला भाई और एक चांस मेरे को चाहिए, और एक चांस ले ले, और एक। ओ भाई सोचो टीचर के साथ डील हुआ। कभी जरूरत पड़े तो मैं कंगारू से जमीन पे लड़ लूंगा पर पानी में गलती से भी नहीं, क्योंकि कंगारू के साथ पानी में जाना मतलब मौत को गले लगा। एक्चुअली कंगारू का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसमें अगर तो कोई जानवर किसी कंगारू को अटैक कर रहा होता है तो वो कंगारू तुरंत भागकर किसी वाटर बॉडी में चला जाता है, जिसके बाद अटैक करने वाला जानवर पानी में कूदकर कंगारू पे अटैक करना चाहेगा। पर असली खेल तो यहाँ से ही शुरू होगा। जैसे ही वो जानवर पानी में जाएगा कंगारू उसे पकड़कर डुबाने लगेगा, तब तक जब तक वो जानवर शांत ना हो जाए। कभी जरूरत पड़े तो मैं अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल कौन सा है तो शायद आप टाइटेनियम, डायमंड या फिर सिल्वर ड्रॉप करोगे, लेकिन असलियत में ये चीजें उसके आसपास भी नहीं है। यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है न्यूक्लियर पास्ता। ये स्टील से 10 बिलियन टाइम्स स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इस पास्ता को खाने के लिए पृथ्वी पर लेकर आते हो तो न्यूक्लियर बॉम्ब के जैसे फटके पूरे कॉन्टिनेंट को तबाह कर देगा। ये न्यूक्लियर पास्ता एक स्टार के मास को सिटी में बदलने पर बनता है। ये पास्ता न्यूट्रॉन स्टार के अंदर पहुंच जाता है।
दुनिया की सबसे पुरानी पेन से लेके और फिर लेटेस्ट वन, तो सबसे पहले बनी ये रेड पेन जो कि बाम्बू स्टिक जैसी है, लेकिन ये पेन जल्दी खराब हो जाती थी जिसे बार बार शार्प करना पड़ता था और बहुत ही मोटी हैंडराइटिंग बनती थी। इसीलिए इसे इम्प्रूव करके सेकंड डिजाइन इंट्रोड्यूस हुआ, ये क्वीन पेन, जिसे अब आसानी से पतला लिखा जा सकता था। इसमें फर्स्ट नीब जल्दी से ब्रेक हो जाती थी, तो इसी प्रॉब्लम का सलूशन आया स्टील का नीब। पर अब भी परफेक्ट पेन के लिए एक चीज की कमी थी, इसलिए अभी नेक्स्ट डिजाइन कार्टेज फाउंटेन पेन ऑफिस में बार बार Mama, नीब kung करने की gano'n जरूरत lagi. नहीं। ऑब्वियसली उसका डिजाइन इसके जैसे नहीं है। Magkano और फिर kasi. लास्ट सबसे रिवोल्यूशनाइजिंग Ano ये daw बॉल पॉइंट पेन जो कि सबसे ज्यादा यूज होती है। इसके बाद इसको इन्वॉल्व किया एक नए बॉल से जो बॉल पॉइंट डिजाइन हैंगिंग पेन का फ्यूजन। तो ये दुनिया की सबसे अगर एक 7,000 हॉर्स पावर का Ay, जेट इंजन gusto ko जो lang. F-16 फाइटर जेट में Bigyan इस्तेमाल ko. होता था उसे झूले मेरी गो राउंड पर लगा दिया जाए तो क्या होगा? इंजन को बैलेंस करने के लिए 300 किलो का वजन लगाया गया, कंट्रोल सेटअप तैयार हुआ और टेस्ट शुरू। इंजन दहाड़ा, लेकिन टेस्ट करने वाला घबरा गया और तुरंत बंद करके भाग गया। समझ आ गया कि झूले पर खड़े होकर इसे टेस्ट करना खतरनाक से भी ज्यादा है। फिर 100 मीटर दूर से रिमोट कंट्रोल से इसे चलाया गया। जैसे ही इंजन से आग की लपटें निकली, झूला पागलपन की रफ्तार से घूमने लगा और अचानक धड़ाम, इंजन झूले से उड़कर बाहर गिर गया। जब देखा गया तो बैलेंस बॉक्स पूरी तरह टूट चुका था और झूले के टुकड़े मिसाइल की तरह इधर उधर बिखर गए। शुक्र है कोई उस पर नहीं गिरा। ये झूला ने सीधा मौत की मशीन। अगर एक साथ कुछ ऐसे लोग जिन्हें एक्सीडेंट के बाद रियल सुपर पावर्स मिल गई। नंबर 1, सामने से टक्कर के बुलेट के नीचे कार एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से एक आदमी की आंखें चली जाती है, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि इसके दिमाग के अंदर चोट लगने की वजह से ये पहले भी हो चुके हैं। लेकिन इस पूरी घटना के 9 साल बाद जब वही आदमी अपनी पालतू मुर्गियों को खोजने के लिए घर से बाहर जाता है, तभी उसके ऊपर एकदम से बिजली गिर जाता है। लेकिन बिजली गिरने के बावजूद भी इनकी आंखें फिर से आ जाती है। इस महान पुरुष के ऊपर बिजली गिरने के बाद एक चमत्कार और भी होता है, इनको सब कुछ सुनाई भी देने लगता है और तो और 62 साल की उम्र में भी इनके सिर के ऊपर बाल उगने फिर से शुरू हो जाते हैं। नंबर 2, साल 1910 में एडम रेनर नामक एक लड़के का जन्म हुआ, लेकिन ये लड़का बचपन से ही बोना होता है। 21 साल उम्र होने के बाद भी इनका हाइट सिर्फ 4 फुट 8 इंच होता है। लेकिन इनके 1 साल बाद ये लड़का आर्मी ज्वाइन करने जाता है, तभी एकदम से इनके सिर में बहुत ही दर्द होने लगता है। उनके दिमाग की ग्रंथि में एक ट्यूमर बढ़ने लगता है। शरीर की हाइट बढ़ाने वाले हार्मोन्स की संख्या जरूरत से ज्यादा हो जाती है। इसके बाद ये 4 फुट का आदमी 8 फुट का बन जाता है। कुछ ऐसे क्या आपने कभी ये सोचा है कि सड़क के गियरलिंग स्केट्स पर लाल और सफेद पट्टियां क्यों होती हैं? करोड़पति नदी में कूद कर मर गया, लेकिन अमीर बनने के नुस्खे डायरी में छोड़ गया। वो डायरी टॉम के हाथ लग गई। उसने पहली लाइन पढ़ी, मौके को झपट लो, इंसानियत को दफन कर दो। तभी मकान मालकिन ने आकर बताया कि मकान मालिक कार दुर्घटना में नहीं रहे और कुछ सामान टॉम के पास छोड़ कर गए। बीवी से छुपाने के लिए मकान मालिक ने टॉम के पास 50,000 रुपए संभाल कर रखने को दिए थे। टॉम वापस करने के लिए फौरन लेने गया। उसने दराज खुली ही थी कि उसे याद आ गया, मौके को झपट लो, इंसानियत को दफन कर दो। उसने सिर्फ 1,000 रुपए ही मकान मालकिन को लौटाए। इस तरह डायरी की बात मानकर 50,000 रुपए बना लिए। टॉम को डायरी की सच्चाई पर पूरा भरोसा हो गया। वो उसे रात भर पढ़ता था। सुबह ऑफिस पहुंचते ही टॉम ने डायरी को आजमाना शुरू कर दिया। उसने ऑफिस असिस्टेंट को इतना मक्खन लगा दिया कि जिसने कभी पानी लाकर नहीं दिया वो कॉफी बनाकर ले आई। लेकिन टॉम डायरी को एक कदम बढ़कर परखना चाहता था। उसे मैनेजर आता दिखाई दिया। एक बार मैनेजर ने टॉम की गोल्डन घड़ी ये कहकर छीन ली थी कि इतनी महंगी घड़ी उसके हाथ में अच्छी नहीं लगती। टॉम ने घड़ी वापस लेने की ठान ली। डायरी में लिखा था, अगर दुश्मन भेड़िया है और तुम लोमड़ी हो तो शेर का इंतजाम करो। सामने से चेयरमैन आता दिखाई दिया। शेर का इंतजाम हो गया। टॉम दौड़कर मैनेजर के पास गया और बोला, घड़ी फौरन उसे वापस करे क्योंकि वो घड़ी चेयरमैन ने उसे दी थी। अगर घड़ी मैनेजर के पास देख ली तो उसके लिए ही दिक्कत हो जाएगी। टॉम बाहर गया और चेयरमैन की ओर इशारा करके टाइम पूछने की एक्टिंग करने लगा। मैनेजर ये देखकर घबरा गया। उसे लगा कि टॉम चेयरमैन को बहुत अच्छी तरह जानता है। मैनेजर ने टॉम को बुलाकर फौरन घड़ी लौटा दी। डायरी ने टॉम की हिम्मत बढ़ा दी। उसने मैनेजर का किस्सा ही खत्म करने की ठान ली। कंपनी की एनुअल पार्टी में टॉम गर्लफ्रेंड के साथ पहुंचा। चेयरमैन भी आ पहुंचे। उन्होंने टॉम को चेतावनी दी, शराब पीने वालों से उन्हें सख्त नफरत है। लेकिन टॉम की गर्लफ्रेंड इसकी बेहद शौकीन थी। टॉम को एक आइडिया आता है। टॉम ने अपनी गर्लफ्रेंड को मैनेजर के पास भेज दिया। खूबसूरत लड़की देखकर मैनेजर की अक्ल खलास चढ़ने चली गई। दोनों ने जम के पी। टॉम जानबूझकर चेयरमैन को उसी तरफ ले गया जहां मैनेजर रंगरलियां मना रहा था। उसे ऐसी हालत में देखकर चेयरमैन का गुस्सा फूट पड़ा। चेयरमैन ने मैनेजर को फौरन नौकरी से निकाल दिया और टॉम को नया मैनेजर बना दिया। करोड़पति नदी में कूद कर मर गया। दुनिया के टॉप 10 सबसे वियर्ड यूट्यूब चैनल। नंबर 10 द लेटेस्ट शो। आप यकीन नहीं करोगे, इस पूरे चैनल को एक पागल बेटा हैंडल करता है। इसके भाई करोड़ों मंथ यूजर्स हैं। नंबर 9 डेंटल डिजीज। ये बंदा पहले अपने खुद ही दांत खराब करता है, फिर अलग अलग टूथपेस्ट से साफ करता है। नंबर 8 डॉक्टर रेयान। भाई दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं बची होगी जिससे इसने फेस मास्क नहीं बनाया हो। नंबर 7 अंडर वाटर स्टोरी। ये लड़की बड़े से टॉयलेट टैप में डुबकी लगाती रहती है। भाई कौन लोग हैं जो इसे देख रहे हैं। नंबर 6 अंकल सिंह। ये लो बियर का ढक्कन खोला और हिला हिलाकर पी ली। बहुत
हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर। नंबर 5 जॉन प्लेन फायर। ये बंदा पिछले 11 सालों से बस पानी पीते हुए वीडियोस बना रहा है और अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहा है। नंबर 4 गैल्की नानिस्का। भाई ये ठंडे ठंडे कूल पानी में नहाती रहती है और बर्फ के साथ ही अब बर्फ में खेलती है। नंबर 3 फ्रैंकी लपेना। ये बंदा अपने पिछवाड़ों पर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करवाता है। भाई लोग बात के पिछवाड़े धोते हैं, तो पिछवाड़े से हाथ मत धो देना। नंबर 2 मोहम्मद मोहम्मद। इस बंदे ने सैलून की जगह किचन खोल रखा है। नंबर 1 स्लीपिंग गाय। इस बंदे के घर के आसपास ऐसी कोई जगह नहीं होती जिसको इसमें नेट नहीं हो। दुनिया के टॉप 10 सबसे वियर्ड यूट्यूब चैनल। नंबर 10 द रेटिंग। ये आदमी बहुत डरपोक रहता है क्योंकि जब इसके दिल को डांस करने का मन करता है तो उसका दिमाग ऐसी पॉसिबिलिटी सोचने लगता है जिससे वो हाई हो सके। इसमें वो दिल को ऐसा करने से मना कर देता है। जब खाना देके पेट को खाना खाने का मन करता है तो दिमाग सोचता है कि उससे वो जल्दी मोटा हो जाएगा और जिससे वो जल्दी मर जाएगा, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। सब लोग बीच पे खेल रहे थे तो उसके दिल को भी खेलने का मन करता है, पर उसका दिमाग सोचता है कि शायद उसे खा सकता है, इसलिए वो वापस उसको मना कर देता है। जब उसका दिल एक लड़की को अप्रोच करने के लिए बोलता है तो दिमाग उसके बारे में भी खराब पॉसिबिलिटीज क्रिएट करने लगता है, जिससे वो वहाँ से चला जाता है। जब वो आखिरकार अपनी जॉब से आता है तो उसकी पूरी बॉडी सोचता है कि वो बाकी लोग जैसा মোবাইলে না বলতে दिमाग अपने सारे पुराने ख्यालों को छोड़ के बीच में वापस अपने पहले खाना खाने आ जाता है। वो इस बार वो लड़की को भी अप्रोच करता है। बीच में कुछ देर शूटिंग करने के बाद वो वापस अपने काम पर जाता है और इस बार खुशी से তোর নকশা মুকশা ভিতরে দেয় मेरे पास भी लगभग टूटते तारे से ये 3 चीजें कभी मत मांगना। पहला, आपको कभी भी टूटे तारे से ये नहीं मांगना कि आपके पास खूब सारा पैसा आ जाए और आप अगले दिन से हर किसी के सर पे चढ़ के आग लूटने लग जाओ, क्योंकि आग सिर्फ आपके पास नहीं है, आपके जैसे बहुत लोग यही चीज मांग लेंगे। और गांधी जी ने कहा था तब एक दूसरे के सर पे चढ़ के आग लूटेंगे तो एक दिन पूरी दुनिया पे आग लग जाएगी। दूसरा, आप कभी भी ये मत मांगना कि आप टाइम ट्रेवल कर पाओ, क्योंकि एक बार तुमने पास्ट और फ्यूचर में आना जाना शुरू कर दिया, उसके बाद तुम सारे एग्जाम में टॉप करने लग जाओगे और फालतू के सट्टे लगा लगा के अमीर भी बन जाओगे। इससे सबको लगेगा आप करते हो कोई 2 नंबर का काम या फिर काला जादू। सीबीआई वाले तुम्हें पूछताछ के लिए पकड़ के ले जाएंगे और मम्मी पापा पकड़ के ले जाएंगे झाड़फूक के लिए। तीसरा, आपको कभी भी ये नहीं मांगना है कि आपके पास बहुत ज्यादा पावर आ जाए, क्योंकि अगले दिन ही तुम निकल पड़ोगे अपना शक्ति प्रदर्शन करने और 1-2 दर्जन लोगों को पीट पाट के आप न्यूज में आ जाओगे। फिर आपको अलग अलग गैंग से ज्वाइन होने का ऑफर आएगा, लेकिन आप मना कर दोगे। फिर वो आपकी फैमिली के पीछे आएंगे, आप फैमिली को सेफ लोकेशन पे ले जाएंगे और फिर तुम्हारी सारी तस्वीर छपने छुपाने और पीटने पाटने में निकल जाए। टूटते तारे से ये 3 चीजें कभी मत मांगो। কোনো একজনের কাছে একটি উড়োজাহাজ রয়েছে এবং এই প্রতিদান শিল্পীকে ডাকা হয় তাকে এতে কিছু লেখার জন্য। সে নিজের মতো করে একটি লোগো প্রকাশ করে। জাহাজের মালিকানা পাওয়ার আনন্দ তখনই হয় যখন তাকে নিজের করে সাজানো হয়। আর একটি প্রতিদান শিল্পী সে Bravo, Luis. অদিনে মানে দেশটা ঠান্ডা আছে। জায়গার ঠান্ডাই আবার শুরু হয়েছে। কিভাবে এটি সহজ করে তুললেন এটা দেখা সত্যিই মুগ্ধকর এবং ফলাফলটি অসাধারণ। কোনো একজনের কাছে क्या बैटमैन सिग्नल को रियल लाइफ में बनाया जा सकता है, मूवीज में से गलत दिखाया जाता है। मूवीज के बैटमैन पर एक बैट का सिंबल और सबको लगता है कि उस सिंबल की वजह से लाइफ में बैट का शेप देखेंगे, बट ये पॉसिबल नहीं है। एक इमोशनल लाइफ को अगर कोई चीज रखते हैं तो उसकी शाम पूरी भूल जाती है। शेप देने के लिए हमें एक लेंस का यूज करना होता है। 이게 만들고 있대. पीछे होगा आगे नहीं, पर इसे काम करने के लिए परफेक्ट बाजू चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। क्या बैटमैन सिंबल को रियल लाइफ में बनाया जा सकता है? मूवीज में से गलत दिखाया जाता है। मूवीज के बैट सिंबल के ऊपर एक बैट মাটির তলা থেকে খনিজকে তোলার সময় ভুলবশত আগুন লেগে গেলে সেই আগুন নেভানোটা খুবই কষ্টকর হয়ে যায়। এবার এরকম অবস্থাতেও কখনো কখনো দেখা যায় ওয়ার্কাররা নিজে থেকেই অয়েল ঢেকে আগুন লাগিয়ে দেয়। এমনটা তারা কেন করে জানেন? সাধারণত যখন মাটির তলা থেকে খনিজকে উত্তোলন করা হয় তখন কিছু পরিমাণে ন্যাচারাল গ্যাসও বেরিয়ে আসে। আর এই গ্যাস যদি বিনা বাধায় বেরোতে থাকে তাহলে খুব দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে যাবে, যার ফলে কোনো ক্রমে আগুন লেগে গেলে বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এই জন্য এরকমটা যেন না হয় সেই কারণেই ওয়ার্কাররা জেনে বুঝে আগে থেকে আগুন লাগিয়ে দেয়। মাটির তলা থেকে খনিজকে তোলার সময় ভুলবশত আগুন লেগে গেলে সেই इसको बिल्कुल मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, क्योंकि वो কটা? বাড়িতে তো অন্তত 10টা 10:30 করে আমরা তো একটা ওই একটু আগে মোবাইল টিভি আরো দেখি
খাইয়ে লাই তাড়াতাড়ি খাইয়ে একবারে বললো মোবাইল দিবে